Dear students, in this video we are going to discuss over our Flamingo's fourth lesson, The Rat Trap by Selma Lagerlof. Selma Lagerlof, full name Selma Ottilia Lovisa Lagerlof, 1858 to 1940, was a Swedish writer. She published her first novel, Gustav Berling Saga, at the age of 33, and she was the first woman to win the Nobel Prize in Literature, which she was awarded in 1909. Her stories have been translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that is essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. The story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in manner of a fairy tale. तो ये जैसे बता रहा है कि उनकी जो स्टोरी का एक तरह से मेन थीम है वो यही है कि ए बिलीफ that the essential goodness in human being can be awakened through understanding and love. Now listen the introduction of the story The Rat Trap carefully. The Rat Trap is a wonderful story told like a fairy tale. Manner of fairy tale. Here tale means story. Kahani. Tale. It gives voice to the writer's conviction that no man is a criminal by birth. Secondly, every sinner has a trace of goodness in him which can be awakened through love and care, understanding and love. Love and care can change a thief into a decent fellow. This is the theme of the story, The Rat Trap. The man in rags was a poor wanderer. He used to beg as well as steal. But he had a thinking brain and skill to make rat traps. He was a peddler who believed that the whole world was like a trap. It offered the baits of riches to innocent people to entrap them first and then get them punished by law. The protagonist of the story was tired and hungry and in need of a shelter for the night. He found a generous old man in a cottage. He was tempted to steal the host money. He was caught in the trap himself. He lost his way in a forest. He took shelter. He took shelter in an iron forge. The iron master mistook him for his old friend, a captain. He sent his daughter to bring the captain home to celebrate Christmas. The hospitality and sympathy of the host changed his view of the world. He was touched deeply
by the goodness of the young lady. It proved a turning point in his life. He returned the stolen money to the old man and started a new life. In this way, we see that how a small event can change the life of a man. Now, notice this expression. Notice these expression in the text. Infer their meaning from the context. जैसे यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन से लिखे हुए हैं, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, अनवांटेड जॉय, impenetrable prison, nodded a hearty consent, eased his way, fallen into a line of thought, things have gone downhill. तो जो ये एक्सप्रेशन है हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और जहाँ जहाँ उसकी मीनिंग आएगी तो उसकी एक सूटेबल मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे. अब जैसे हम इस पैराग्राफ को देखते हैं. Once upon a time, there was a man who went round selling small rat traps of wire. इसमें जो वर्ड है रैट ट्रैप्स, इसमें दो वर्ड है, जैसे एक रैट है और एक ट्रैप है, दोनों को मिला करके रैट ट्रैप बनता है. तो तीन चीज़ें इसमें रिमार्केबल होती हैं. एक रैट है, एक ट्रैप है और एक टेम्पटेशन होता है. यानी रैट जिस चीज़ की ओर आकर्षित हो करके और इंट्रैप होता है, उसमें जा करके पकड़ लिया जाता है, फंस जाता है, वो टेम्पटेशन होता है. तो जो टाइटल में रैट ट्रैप है तो रैट में रैट है, ट्रैप है और वो टेम्पटेशन के रूप में जैसे कोई पीस ऑफ ब्रेड या चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो खाने के लिए रखी जाती है और उसकी ओर वो अट्रैक्ट होकर के, आकर्षित होकर के उसमें जा कर के फंस जाता है. तो तीन चीज़ें इसमें रिमार्केबल है, रैट, टेम्पटेशन और ट्रैप. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. मतलब कि वो जो रैट ट्रैप्स होता है उसको खुद बनाता है जब भी उसके पास खाली टाइम बचता है, थोड़ा सा वक्त निकाल करके, और उस चीज़ों को वो रैट ट्रैप खुद बनाता है. और उसको बनाने में देखिए वो मटेरियल जो लाता है, मटेरियल ही गॉट, तो बेगिंग यानी मांग करके लाता है स्टोर से या फिर बड़े फार्म से. तो जो मटेरियल उसमें लगाता है वो मांग करके, बेगिंग वर्ड उसके लिए यूज किया है. बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. बावजूद इसके जो बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि जो उसके लिए रॉ मटेरियल्स थे वो बेगिंग इन स्टोर्स और बिग फार्म मांगने से उसको मिल जाता था, फिर भी उस बिजनेस में उसको अच्छे प्रॉफिट नहीं हुआ. जो रैट ट्रैप वो बनाता था उसमें उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ. सो ही हैड टू रिजॉर्ट द बोथ टू बोथ बेगिंग एंड ए पेटी थीवरी. हम नोटिस करेंगे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब वह मांगने के साथ साथ छोटी मोटी चोरियां शुरू कर देता है. पेटी थ्योरी. रीज़न क्या है? तो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो टू मैनेज टू सर्वाइवल, यानी हाउ टू सर्वाइव, यानी टू कलेक्ट द नेसेसिटी ऑफ आवर डेली लाइफ. जैसे कि या एबल टू पे फॉर फूड, क्लोथिंग एंड प्लेस टू लिव, ये चीज़ होता है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो ये यहाँ से जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ तक इसको नोटिस कर लेंगे. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू मैनेज टू सर्वाइव आर एबल टू पे फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड लॉजिंग.
Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. सेकेंड एक्सप्रेशन है यहाँ पर, हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज। यहाँ से तो अगर हम केवल ग्लीम वर्ड की मीनिंग नोटिस करें तो इसका मतलब साइन होता है, चमकना। ग्लिम्ड का मतलब सोन हो जाएगा। बट यहाँ इसकी मीनिंग यह है कि जो भूख थी उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यानी ये कह कर के कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि वो बिल्कुल भूखा है। यानी हंगर वाज क्लियरली विजिबल इन हिज आइज और हिज हंगर इज नोटिसेबल। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road। तो यहाँ पर कह रहा है कि कल्पना नहीं की जा सकती कि एक इस तरह के जो वैगबॉन्ड था, जो वांडरर था, घुमक्कड़ था, उसका लाइफ जो इतनी सैड और मोनोटोनस नीरस हो सकती है। जो हु प्लॉट्स along द रोड, तो जो प्लॉट्स है टू ड्रज, धीरे धीरे चलना, वॉक हैविली, इसको वॉक हैविली along the road, left to his own meditation, but one day this man had fallen into a line of thought। एक दिन अचानक उसके मन में, दिमाग में एक आइडिया आता है, which really seemed to him entertaining। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world was, its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap। एक दिन सो सडन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये पूरी दुनिया जो है एक बड़े रैट ट्रैप की तरह है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। इट ऑफर्ड प्रोवाइडेड या गेव रिचेज एंड जॉयज, रिचेज वेल्थ, रिच मतलब धनी होता है, बट रिचेज धन, and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as a rat trap offered cheese and pork। तो इसमें ये कह रहा है कि जिस तरह से रैट के लिए उस रैट ट्रैप में हम कोई चीज़ या पोर्क रख देते हैं और वो उसकी ओर आकर्षित होता है और आकर के उस रैट ट्रैप में जो रैट होता है वो फंस जाता है, तो उसी तरह से कह रहा है कि ये दुनिया जो एक बड़े रैट ट्रैप की तरह है और इसमें धन या फिर प्रसन्नता की खोज, शेल्टर या फूड, जो हीट और जो क्लॉथिंग, ये सब रैट ट्रैप में टेम्पटेशन का काम करते हैं। ये सब हमको उस रैट ट्रैप की ओर आकर्षित करते हैं। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। इस तरह से जैसे भी कोई व्यक्ति इसकी ओर आकर्षित होता है तो जो है उस रैट ट्रैप में, उस ट्रैप में फंस जाता है और इस प्रकार लगभग उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। चलिए इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।